A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher. So, children, today we all are going to continue our chapter number second from your book, Our Past Three, and that is your history book. And the name of the chapter is From Trade to Territory. In our last class, what we discussed about how East India Company began trade in Bengal. ठीक है, they established their English factory. After that, they bribed some Mughal officials, and even they wanted to have some zamindari rights over Kalikata, Sutanuti, and Govindapura. Okay. After that, we have seen that how Aurangzeb Farman granted company the right to trade free. Okay. And after that, like we have seen, like Bengal was facing some problems related to trade, because Bengal was facing the problem of revenue. Enormous loss of revenue was there in Bengal. Okay, so this is the we have discussed about this chapter, how like how ships brought goods to a mainland. Okay, then how trade led to better, स्पेशली बंगाल को लेके बात की गई है कि कैसे कैसे क्या क्या ऐसी क्या चीजें हुई जिससे बैटल स्टार्ट हो गए थे, वॉर स्टार्ट हो गए। तो देन नवाब्स इन द 18th सेंचुरी नवाब्स ने बोल दिया था कंपनी को कि आप चले जाइए, हम आपको कोई कंसेशंस नहीं देंगे, आपको कोई राइट नहीं होगा पॉइंट्स को मिंट करने का, ड्यूटी फ्री ट्रेड नहीं होगा, आप अपनी फोर्टिफिकेशन, मतलब उनपे बैरियर्स लगा दिए थे, रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। ठीक है, एंड इवन नवाब पावरफुल थे, बट फिर भी उन्होंने क्या है, जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी थे वो रिफ्यूज कर रहे थे कि उनको कोई भी वो रेवेन्यू नहीं देंगी। ठीक है, एंड उनका कहना था हम तभी फ्लरिश कर सकते हैं, कंपनी तभी फ्लरिश कर सकती है जब हमारी ड्यूटी फ्री जो है ट्रेडिंग होगी। ठीक है, तो नाउ कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजेस, एंड ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स और कन्फ्रंटेशंस थी फाइनली accumulated in the famous Battle of Plassey, which we will discuss today. So our today's topic is the Battle of Plassey. Okay, now you have seen that how company and the Bengal of Nawab got have different perceptions, and they they have confrontations and conflicts between them, and these conflicts between them led to the famous Battle of Plassey. Okay, this was Battle of Plassey. Basically, this was the first battle which was won by British, from the British, you can say, or you can say East India Company. Okay, this was the first major victory of the company in India. So now, what is this Battle of Plassey? As you all know, when Alivardi Khan died in the year 1756, Alivardi Khan died in the year 1766, Sirajuddaulah became the Nawab of Bengal. Sirajuddaulah जो थे वो बंगाल के नवाब बन चुके थे. Now the company was worried. Why they were worried? They were worried because like company was stopping them to the Nawabs were stopping them to fortify their mm, mm, fortification. They were refusing to have the right to mint their coins, and duty free trade. These all are were some of the reasons जिसके वजह से जो कंपनी थी बहुत ज्यादा worried थी. Now company came up with an idea. They keen on puppet ruler. Puppet, you all are very much aware about this puppet. कठपुतली, हमारे राजस्थान में तो बहुत फेमस है कठपुतली का खेल. So just like that, keen on puppet ruler. कि puppet ruler का मतलब क्या है? मतलब who would willingly give trade concessions and other privileges. कि जैसा एक टॉय होता है ना, टॉय को हम जैसे कठपुतली को हम क्या करते हैं, धागे में हम जैसा चलाएंगे वैसे चलता है. तो जस्ट लाइक दैट व्हाट ईस्ट इंडिया कंपनी वांट्स, दे वांट कि जो हम ऐसे रूलर्स या ऐसे रूलर्स हों जो हमारे इशारे पे चलें, हम जैसा बोले वैसा ही करें. हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशंस एंड अदर प्रिविलेजेस, जो हमें
ट्रेड कंसेशंस दें और भी दूसरी प्रिविलेजेस दें, जैसे कि वो खुद के कॉइन्स को मिंट कर सकें, फोर्टिफाई कर सके। तो ये कुछ प्रिविलेजेस थे जो ये चाहते थे। तो उन्होंने बोला कि हम अब पपेट रूलर्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। उन्होंने पपेट रूलर को बनाना, मतलब पपेट रूलर भी जो है आप बोल सकते हो कि उन पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया था। एंड दे इवन ट्राइड इट, ठीक है, बहुत ट्राई भी किया उन्होंने पपेट रूलर्स बनाने के। तो और इवन उस हमारा जो इंडिया का जो मेजर ये रीजन था कि ब्रिटिशर्स के अंडर हम एज अ स्लेव क्यों रहे हैं, वो यही कारण था कि हम यूनाइट नहीं रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने ट्राई भी किया था। उन्होंने बहुत सारे सिराजुद्दौला के जो राइवल्स थे, जो नवाब बनना चाहते थे, उनको ऐसे बोला कि अगर आप हमारा साथ दोगे तो हम सिराजुद्दौला को हरा के आपको हम वहां का नवाब बना देंगे, ठीक है। तो नाउ योर क्वेश्चन अराइजेस लाइक व्हाई लाइक company led to this famous battle, why, क्यों, क्या हो गया था? as Sirajuddaulah asked कि stop meddling in the political affairs of his dominion, कि आप कोई भी बीच में ना जो भी हमारा पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, जो भी हमारे पॉलिटिकल हॉराइजंस हैं, ठीक है, उसमें आप अपनी दखल अंदाजी करना बंद कर दीजिए, ठीक है। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये कंपनी को सिराजुद्दौला ने बोल दिया था। दे ही सेड स्टॉप फोर्टिफिकेशन एंड पे द रेवेन्यूज। फोर्टिफिकेशन, जो आप अपना फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं ना, जो वॉल्स बना रहे हैं अपने फैक्ट्रीज के आसपास में, अपने ऑफिसेज के आसपास में फॉर योर प्रोटेक्शन, मतलब ये फोर्टिफिकेशन आप जो है अपने एरिया का बंद कर दीजिए एंड रेवेन्यूज पे कर दीजिए, ठीक है। उन्होंने एकदम सीधे सीधे शब्दों में बोल दिया, एकदम से गुस्से में आके इन्फ्यूरिएट होके उन्होंने ये चीज बोल दी थी, ठीक है। बट ऑल द नेगोशिएशंस गॉट फेल्ड, ठीक है, ये नेगोशिएशंस फेल्ड हो चुके थे। सिराजुद्दौला को बहुत ज्यादा गुस्सा आया एंड नाउ व्हाट ही डिड, नवाब मार्च्ड विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार, ठीक है। जो नवाब थे सिराजुद्दौला जो थे, सिराजुद्दौला ने क्या किया, 30,000 सोल्जर्स के साथ जो कासिम बाजार की एक फैक्ट्री थी, कासिम बाजार की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक फैक्ट्री थी कासिम बाजार, बंगाल में एक छोटे से टाउन का नेम है, वहां पे उन्होंने मार्च कर दिया था। वहां पे उन्होंने क्या है, एक काइंड ऑफ लाइक वहां पे बैटल, आप बोल सकते हो बैटल ही स्टार्ट कर दिया था, वॉर ही उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। ही कैप्चर्ड द कंपनीज ऑफिशियल, कंपनी के जितने भी ऑफिशियल्स थे उनको कैप्चर कर लिया। लॉक द वेयर हाउसेस, जितने भी उनके वेयर हाउसेस थे उनको बंद करके रख दिया था। He disarmed all Englishmen and blockaded English ship, जितने भी इंग्लिशमैन थे उनको डिसआर्म्ड, मतलब उनके पास जो भी वेपन्स वगैरह थे सब उनसे ले लिए गए थे, उनको बंदी बना के रख लिया गया था। और इवन ही ब्लॉकेडेड इंग्लिश शिप, जिससे सामान आता था, जितने भी गुड्स वगैरह आते थे, रॉ मटेरियल्स आते थे, वैसे जितनी भी शिप थी, बोट्स थी, उनको क्या कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था, ठीक है। ब्लॉक he blocked it. Now again after Kasim Bajar he marched to Calcutta, ठीक है। अब कैलकटा जो उस टाइम पे कालीकत्ता के नाम से फेमस था, नाउ ही मार्च टू कलकत्ता टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनी, कंपनीज फोर्ट देयर, जो कंपनी का अब वहां पे जो फोर्ट बना हुआ था, ठीक है। अब कंपनी के फोर्ट में कैलकटा में उन्होंने क्या किया कि हमें कैप्चर करना है, और कैलकटा में उन्होंने मार्च स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। पहले कासिम बाजार फिर कैलकटा में। नाउ व्हाट हैपेंड, देखो, नाउ ही इज लाइक सिराजुद्दौला, ही इज सो infuriate and no, he is not सिराजुद्दौला but yes one of the men of सिराजुद्दौला, बहुत infuriate हो रहा था, बोल रहा था जाके कैप्चर करो, ये करो, कंपनी का जो फोर्ट है यहाँ पे कंट्रोल हमें एस्टैब्लिश करना है। So now what happened, अब जैसे जैसे पता चला, on hearing the news of the fall of Calcutta, company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive, reinforced by naval fleets. Okay, now what happened, जैसे जैसे उन्होंने सुना कि ठीक है, जब न्यूज फैली कि जो नवाब है कैलकटा के, जो नवाब हैं वेस्ट बंगाल के जो नवाब हैं वो कैलकटा में मार्च कर चुके हैं,
तो मद्रास में जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने जो है वो फोर्सेस को भेजा अंडर under the command of whom? Under the command of Robert Clive. Under the command of Robert Clive बहुत सारी नेवल्स आई, शिप आए और वहां पे क्या हुआ, शिप्स आए और रॉबर्ट क्लाइव के कमांड पे मद्रास से भी ऑफिसर्स, कंपनी ने ऑफिसर्स को और सोल्जर्स को भेज दिया। प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशंस विद द नवाब फॉलोड, ठीक है, जितने भी नेगोशिएशंस थे नवाब के वो फॉलो किए गए। Finally, in 1757, Robert Clive led the company's army against Sirajuddaula at Plassey. Now, यहाँ पे उन्होंने एक खेल खेला, ठीक है, जो रॉबर्ट क्लाइव हैं उन्होंने एक खेल खेला। क्या किया उन्होंने, कंपनी के एक जो ये सिराजुद्दौला के एक आप बोल सकते हो कि एक कमांडर थे, ठीक है, मीर जफर नाम था उनका, एंड उन्होंने कभी लड़ाई ही नहीं की। उन्होंने, सिराजुद्दौला ने कहा था कि आपको क्या है, बैटल लड़ना है, कमांडर्स होते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना सिराजुद्दौला नवाब है तो वही जाके हर जगह लड़ाई करेंगे, बैटल करेंगे। नो, दिस इज नॉट द केस, दिस वाज नॉट द केस। मीर जफर, वन ऑफ हिज कमांडर, ही नेवर फॉट द बैटल, ठीक है। और कंपनी ने यहाँ पे, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या बोला, एज अ पपेट रूलर इसका इस्तेमाल किया, यूज किया कि सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में हमारे साथ आप रहिए। उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, और सिराजुद्दौला जब मर जाएंगे या फिर सिराजुद्दौला चले जाएंगे तो हम आपको यहाँ का नवाब बना देंगे। तो मीर जफर जो थे वो इस लालच में आ गए और उन्होंने क्या किया, कभी भी कोई जो ये बैटल था, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, वो लड़े ही नहीं थे। So after that, Clive had managed to secure his support by promising to make him नवाब after crushing सिराजुद्दौला। अब देखो, मीर जफर के कारण, मीर जफर जो थे उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी और उनको एज अ पपेट रूलर यूज कर रहे थे, और इस वजह से क्या हुआ, सिराजुद्दौला जो है, मीर जफर वो उन्होंने लड़ाई नहीं की, सिराजुद्दौला जो है वो डिफीट हो चुके थे। एंड नाउ रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, उसको जैसे कि मीर जफर ने सपोर्ट किया उसे, तो उन्होंने उनको वहां का नवाब बना दिया था। एंड दिस लेड टू द फेमस बैटल ऑफ प्लासी, एंड it became famous because it was the first major victory of the company won in India. अब नाउ कंफ्यूजन अराइजेस, लाइक मैम ये बार बार प्लासी प्लासी क्यों आ रहा है, बैटल ऑफ प्लासी क्यों बोला गया, कासिम बाजार में भी हुआ था, इवन कैलकाटा में भी हुआ था, तो बैटल ऑफ प्लासी क्यों बोलते हैं। सो डिड यू नो हाउ प्लासी गॉट इट्स नेम? जस्ट लुक एट दिस डिड यू नो पोर्शन। प्लासी इज एन anglicized pronunciation of Palashi, and the place derived its name from the Palash tree known for its beautiful red flowers that yield gulal, the powder used in the festival of Holi. नाउ ये जो पलाशी है, प्लासे जो हैं, ये जो ब्रिटिशर्स थे, इंग्लिश थे, ये इसको कैसे प्रोनाउंस करते थे, पलाशी, पलाशी को प्रोनाउंस करते थे प्लासे, ठीक है, पलाशी को क्या प्रोनाउंस करते थे, प्लासे प्रोनाउंस करते थे। एंड ये जो पलाशी है, इस जगह का नाम पलाशी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पलाश के ट्रीज जो हैं बहुत ज्यादा ग्रो होते हैं, बहुत फेमस है यहाँ पे पलाश के ट्री, जो ब्यूटीफुल रेड फ्लावर्स के लिए जाने जाते हैं। इवन जो हम होली में गुलाल यूज करते हैं वो ये रेड फ्लावर्स, ये जो पलाश के ट्रीज के फ्लावर्स हैं उनसे बनता है, ठीक है। सो नाउ ये पलाशी टर्म था, पलाशी को जो एंग्लिशाइज्ड प्रोनाउंसिएशन था, जो इंग्लिश थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स थे, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन थी वो ऐसी थी, पलाशी को उन्होंने बोला था प्लासे, ओके। एंड मीर जफर वहां पे वो कहाँ पे कमांड कर रहे थे, पलाशी में कमांड कर रहे थे, एंड वहां पे उन्होंने लड़ाई लड़ी नहीं, और इस वजह से क्या हुआ, जो बैटल ऑफ प्लासे था, ठीक है, जो कंपनी दिस बैटल ऑफ प्लासे was the major victory of the company, okay, won in India. So this is all about battle of Plassey, okay class. So